born Gujarati into a Gujarati family. So Ambe Ma is our main deity of worship. But fortunately, my parents had no bars with any religion. We went to Gurudwara, we went to Masjid. So for some reason, Gurudwara always pulled me. Maybe मेरे गुरुजी से journey कब की चालू होगी. But cutting it, moving it forward, the first time I was invited by a friend to a satsang, I had no clue about Guruji. I had no clue what Guruji is, but she said, just come, you will feel peace. So I went. She had some video display going on, but sometimes, the connection is not there. You just go. Following that satsang, I came back. Like again, it felt very good that day. It was very peaceful, very calm. So 2 weeks later, at 4:30 in the morning, I see Guruji in my dreams. I had no clue Guruji के कितने स्वरूप है, कितने चोले में Guruji की pictures है. But I see Guruji's rockstar picture in my dreams, and all I hear is Kalyan Kita. Being a Gujarati, I have no clue what that means. I get up, I go on to my work, but that still sticks in my mind. So Friday, I look it up, and it means it's Guruji's form of blessing. So that's how he pulled me to him, and my journey began gradually. My family got pulled by him and connected to him. My mother got connected. I was just a medium, but during COVID, mom was alone and was feeling very lonely. काफी डर जाते थे. So at that time, I would tell her, Mom, Guruji के सत्संग सुना करिए. And the way Guruji got her to him, she was Gurumay. सोते जागते उनको ओम दर्शन होते थे, butterflies दिखती थी. She would not even pick up my calls at times saying मेरा सत्संग चल रहा है. So, but Guruji took her at his lotus feet last December. It was a very tough journey for me during that time. That 2-3 months I had lost my ground. Didn't know how I'm going to continue without my biggest backbone. My husband, my kids were my biggest support, but they didn't know how to deal with me. My tears would not stop. And again, he's to the rescue. He would tell me, just come sit with me, and I would follow that. And I would just, all my tears, मुझे कोई sense नहीं पड़ता था उस समय. All I know, I miss my mom. And during one of the satsangs, Mondays me and uncle do a satsang just as ourselves. During that one of the satsang, he showed me a vision of him for my mom. And I think my time turned from that on. I know she's at peace, she's with him. And फिर उन्होंने life में हमारी खुशियाँ भरी. My son, I think he's already shared his satsang. Got blessed with Guruji, his biggest blessing. He's got the presidential scholarship at Georgia Tech, full ride. I mean, biggest blessing of our lives, or any parent's dream, his hard work, but definitely your blessing, Guruji. So he had shared his satsang, so I'll cut through that. But one of the mandatory condition with the STAMP scholarship was that they all have to do a tech track, which means the 47 kids who's got picked for the scholarship, they are placed in 4 different groups, and these trips go to 4 different places. दो अलास्का जाती है, एक कोलोराडो जाती है, एक मिनेसोटा बाउंड्री बॉर्डर जाती है. The idea of this whole thing is to throw these kids who are academically driven but out of the norm. They have to be among things they don't know, and then how they cope up. My son got placed in Boundary Waters, Minnesota, and as usual, हम दोनों की tension बहुत है. He has life-threatening food allergies. So दिन रात, and he's never been out of my line of vision from the last 18 years. He has life-threatening food allergies to all nuts, added sesame. So it was a very, very tough couple of weeks. I was connecting to the SAM Scholars offices, and they would assure me, नहीं हम सारा ध्यान रखेंगे. It's all allergen free. They're not supposed to share the menu, but they would share the menu with me, saying go through this, see if there's any allergen issues. Out of 8 items, 7 had red flags. So हमारी दोनों की anxiety और बढ़ रही है. Over the top, they found out that this is backwater trips where there are no bathrooms. So literally, when they say out in the wild, they have to go out in the wild.
they had to dig like 6 to 8 inches and take care of themselves. And this was not something he was into. He's like, why did I accept the scholarship? To that point, कि हम दोनों के लिए वो थोड़ा bone of content हो गया था. So come July 29th, we had to drop him at Georgia Tech, where they keep them for 4 days on the campus. It's in a hotel, have all the fun activities and everything. And then Friday, they all pack from there, पर सब अपने अपने अलग destination पे जाते हैं. So Thursday, we cooked some things, and I told him, I said, I'm going to send him some snack because he has to eat. They literally had to pick up a canoe from one lake, walk to the other lake, camp there that night, then pick up the canoe, walk another distance. So I'm like, he needs energy. I don't know what he will find. So I packed foods, and me and uncle went and dropped him on Thursday night. हम लोग को लगा उस दिन थोड़ा flush था, but we thought it was a lot of activities going on and everything. He goes on the trip Saturday morning, and Saturday morning we get a call. And it's him calling and FaceTime and saying, Mom, I had some reaction or food poisoning, and they're going to take me to the hospital. As a mother, I lost my ground. And something in me kept telling, कि कुछ तो आने वाला है call, because he's never been alone without me monitoring his food. But the expedition leader, she assured me that he's doing fine. But we're still going to take him to the hospital because out in the wood, Lyme's disease भी हो सकती है. COVID चल रहा है, so they wanted to test him for COVID to make sure they keep the other kids safe. So they took him to the hospital. Again, he to the rescue. Everything comes out negative, but they told him that he just wasn't himself. So we're going to still fly him earlier back to Atlanta. This boy has prayed to Guruji. Day and night, Guruji, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है. Guruji ने सुन ली. So they took him back from there. They pulled him out. But Guruji की मेहर इसमें ऐसी है कि if he had come back on his own, it would not have gone well with the scholarship. They would have taken out of his funds, saying, well, we took you, you had to come back. He plays such plays, उनकी permit issues हो गई. जहाँ पर ये तो निकल ही रहा था, but 3 और जन की permit नहीं थी. So they said, well, we are taking Romir back to Atlanta. Let's 3 of us leave. Because अगर permit issue होती है, there are good chances that 3 of them could have got arrested. Because this is Boundary Waters, is on the borders. It's a very strict protocol there. So he's like, Mom, they actually thanked me and said, Romir, because of you, we all got saved. ये उनकी मेहर है. So Saturday, we find out they're going to take him to the hotel, put him up there for a couple of days till he feels good, and then fly him back. Sunday morning, I get a dream. And उस dream में, I see a small snake. And I'm trying to figure out what to do with the snake, and I put the snake in a bag. And I'm like in a balcony I see, and I'm like, okay, I'll just gently drop the snake. But just as I was about to get the snake, I see my mom. And she's telling me, तू रहने दे, मैं कर लेती हूँ. So we see that this snake, she gets out and drops the bag to the ground. And then the snake comes out of that pillowcase or whatever she's put the snake into. वो छोटा snake था जब मेरे dream में था. But when I see that snake crawling out of that pillowcase or whatever, I see 2 huge bumps. Like जैसे python हो गया है. And there are 2 huge bumps in that python. So I woke up uncle and I said, I know Guruji's protected him. Guruji ने अपने पर ले लिया उसका. So I know about the one incident. So he comes back on Monday. And then he tells us that while he was on Georgia Tech, he had another reaction, which he didn't tell us. And he had the Benadryl with him right away. He said, Mom, I take the Benadryl and they send me back to the hotel, let me rest. So those were the 2 kashts that he took care. And वो pendant Guruji का साथ में ले गया था. So जब they moved him to a hotel, it was a Hilton hotel. So he said, मैं Guruji को मम्मा नाइट स्टैंड पे रखा से गुरुजी चलो अपने दोनों enjoy करते हैं. So that is his meher. So I don't know how to thank you, Guruji. You've taken care of all the sangat and you've taken care of the kids. So he goes to Georgia Tech and out of the scholarship they get a stipend. उसको हर month Georgia Tech is going to pay him also for his personal expense. So I said, तेरा शुक्राना बनता है गुरुजी का. So he went and picked up roses for Guruji today. खुद से उठा के ले आया. बोलते मम्मा
अच्छे नहीं थे, only red were good, so I picked up red. And his roses are right here. So Shukrana Guruji for always blessing all of us, and love you a lot, Guruji. Shukrana Guruji. जो भी संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहती प्लीज कर लो। ये आंटी आप कल कह रही थी मुझे कोई सत्संग, हाँ हाँ करो। आपने बोला नहीं सत्संग है तो आज हाँ बिल्कुल बिल्कुल बनता है। तो मैं जय गुरु जी, मेरा नाम करण है एंड अटलांटा में यहाँ पे मेरा पहला सत्संग है। और अभी मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन खत्म करी थी, तो 2 साल मैं इंडियाना में था, ब्लूमिंगटन में, और मैं क्रेव कर रहा था सत्संग के लिए, पर वहाँ पे मुझे मौके नहीं मिल पाए थे। और मतलब 2012 में मैंने शुरू करा था जो सत्संग में जाना, और तब से अच्छा चल रहा था। पर यूएस में आके सबसे बड़ी दिक्कत यही हुई थी कि सत्संग नहीं मिल पाता था। तो 2 साल बिना गुरुजी के सत्संग के रहा था, पर फिर मैं राह ले गया था नॉर्थ कैरोलिना। वहाँ पे मेरा 2 साल बाद पहला सत्संग हुआ था, और अब यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे भी फैमिली मिल गई, तो गुरुजी की कृपा है। अब मैं बताता हूँ, मैं 3 छोटे छोटे सत्संग सुनाता हूँ कि मैं कैसे जुड़ा। पहला, दूसरा 2 हेल्थ वाले सत्संग है, बहुत सारे सत्संग हैं एनीवे, पर गुरुजी सबसे अच्छा हेल्थ बोलते थे कि उनकी कृपा है, तो मैं वो 2 सुना देता हूँ। तो मैंने जब 2012 में एक अपनी ग्रेजुएशन खत्म करी थी इंजीनियरिंग, तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी बैंगलोर में। वहाँ पे काफ़ी लोग लोकल थे, साउथ इंडियंस थे, और मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली से मैं बैंगलोर गया था, तो मेरे को एक सीट दे दी गई थी। और वहाँ पे ही मेरी सीट के जस्ट अपोजिट में एक दूसरा कलीग था मेरा, दूसरे डिपार्टमेंट का। वो हिंदी में सबसे बात करता रहता था उस टाइम पे, जैसे मैं नया नया गया था, और वो सबको बोलता रहता था हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो अंकल, हेलो आंटी। तो जब मैंने पहली बार ही देखा तो मेरा रिएक्शन तो कुछ अलग था। पहले तो वो लोकल अपनी हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा था, तो मेरे को लगा कि मेरे को वैसे उससे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा उससे कनेक्शन हो गया था लैंग्वेज का। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि आप ही बात करते हो, आप अंकल आंटियों से तो बात करते हो, आपके अपने दोस्त नहीं है क्या एज के? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे एक रिलीजियस गैदरिंग होने वाली है, तो वहाँ पे हम लोग सबको अंकल आंटी कहते हैं। तो मैंने कहा रिलीजियस गैदरिंग, और बैकग्राउंड क्या है कि हम लोग ऑलरेडी एक गुरुजी से जुड़े हुए हैं अपने घर में। तो मैंने कहा मेरे को और बताओ, अच्छी बात है, तो रिलीजियस गैदरिंग है। तो कहते हैं मैं बता देता हूँ। तो उन अंकल ने मेरे को डिटेल में बताया कि सत्संग में क्या होता है, गुरुजी के बारे में बताया। और उसने कहा कि मतलब वो मेरे फ्रेंड थे अंकल, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, मेरे घर पे ही आ जाओ, अभी इस बार ही हमारे उधर ही है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को डिस्क्रिप्शन दिया कि कोई सोशलाइजिंग नहीं, तुम्हारा कनेक्शन गुरुजी के साथ होता है, और चुपचाप आके बस बैठना है, कोई चढ़ावा नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं पूरा इम्प्रेस हो गया था। तो मैं गया, जैसे ही मैं गया, मैं सबसे आगे आके बैठ गया, और बहुत मज़ा आया। तो ऐसे करके मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई थी बैंगलोर से। फिर उसके बाद मुझे वहाँ पर एक अंकल मिले जो मेरे को घर छोड़ने वाले थे वापस। तो जाते हुए गाड़ी में उन्होंने मुझे बताया कि अब तुम पहली बार आए हो, तो अब जब तुम दिल्ली जाओगे तो वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है। उन्होंने इतनी पैशनेटली मेरे को डिस्क्रिप्शन दिया अगेन बड़े मंदिर का, कि मैं गाड़ी में ही आई वाज सोल्ड के मेरे को जाना है, तो अब उसी मंदिर पे जाना है, और नेक्स्ट सत्संग क्या होता है। तो ऐसे करके मेरा चल पड़ा था सत्संग में आना जाना। सेकंड, मेरी दादी जी का सत्संग, कि दादी जी की तबीयत खराब थी, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था, और मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा था। तो पापा का फोन आता है हर किसी को कि एक काम करो, आप लोग आ जाओ, मिल लो, लास्ट टाइम है दादी का, तो तुम पता नहीं उनसे मिल पाओगे या नहीं मिल पाओगे। तो सबको उन्होंने बुला लिया। तो बुआ वगैरह अलग अलग स्टेट्स में रहती है इंडिया में, तो वो लोग आए, मैं बैंगलोर से गया, और मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मुझे तो वो बड़े मंदिर जाना है जैसा उन्होंने बताया था अंकल ने। तो जब मैं गया तब बोल दिया कि दादी को कि आप उनको घर पे ले जाइए, और मैंने कहा कि आप घर पे ले जा सकते तो मतलब तो वो सेफ है।
तो मेरी जिद शुरू हो गई पापा से कि पापा हमें अब जाना है उस मंदिर में जिसमें एकदम पूरी सफाई रहती है, वहाँ पे डिसिप्लिन रहता है, वहाँ पे कोई बात नहीं करता। और वो शंकर जी का मंदिर मैंने एम्फसाइज करके बोला था क्योंकि वो अपने गुरुजी को मानते थे, तो मैंने उनको बोला कि शंकर जी का मंदिर है, उसमें गुरुजी का थोड़ा सा फोटो वोटो रहती है। तो इस पे वो तैयार हो गए। फिर दादी से पूछा कि आप चलोगी, तो वो कह रही मैं तो चल नहीं पाऊंगी। तो फिर हमारे पास जो गाड़ी थी उसमें पीछे वाली सीट पे दादी को हमने लिटा के हम ले गए। 2 गाड़ियाँ थी हमारी, ले गए। तो उस टाइम पे दादी की सिचुएशन क्या थी कि वो 1 या 2 गज से रोटी के खाती थी बस अपने घर में। और जब हमें मौका मिला गुरुजी के पास जाने का तो सब एकदम चुप हो गए कि जैसा इसने बोला था जिद करके वैसा ही निकला। और व्हील चेयर आ गई थी दादी जी के लिए और सब कुछ अच्छा हो रहा था। तो बैठ गए वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरी दादी ने 2 रोटियाँ और सब्जी और सलाद और कड़ा प्रसाद पूरा खत्म कर दिया था। और किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया कि जो इंसान बस 1 या 2 गज से खा के बोलता था कि मेरा पेट भर गया, उन्होंने पूरा प्रसाद खत्म कर दिया था प्लेट का। तो फिर सबका मुंह बंद के घर वाले इंक्लाइंड हो गए कि हाँ यार कुछ तो बात है। पर फिर भी अंदर से तो वही मतलब यूपी के हैं मेरे पापा, तो आई डोंट नो, कोई ऑफेंड मत होना। तो वो अंदर से काफी वो है सेल्फ रिस्पेक्ट वाले। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, हमारे भी गुरुजी ऐसे ही हैं। तो फिर वो हो गया। तो दादी जी को ऐसे ब्लेसिंग मिली। और तीसरा एक और है, मेरी बुआ का सत्संग है। ऐसे ही मेरी बुआ को कैंसर था और जब हम लोग सारे लोग गए थे तो सिर्फ वही बुआ की फैमिली नहीं जा पाई थी बड़े मंदिर में, एक बुआ की फैमिली। तो उनको कैंसर था। तो मेरे भैया ने मेरे से पूछा कि यार तुझे इस मंदिर में सबको लेके गया था, मेरे को बताओ उसके बारे में, क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने उनको बताया कि आप ऐसे ऐसे करना। मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया था। और वो गए वहाँ पे बैठ के, उन्होंने जल प्रसाद लिया और जो भी उनको भोजन प्रसाद मिला उन्होंने सब लिया। और नेक्स्ट डे उनकी सर्जरी होनी थी। उनके मतलब कि पानी भर जाता था लंग्स के अंदर और वो निकालते थे डॉक्टर पाइप लगा के छेद करके। और बस वो उन बुआ की वजह से ही बाय द वे मेरे घर वाले उन गुरुजी से जुड़े थे जिनसे वो पहले से जुड़े हुए हैं। पर वो लोग गए वहाँ पे बड़े मंदिर में। नेक्स्ट डे वो सर्जरी के लिए गए और सर्जरी में ले जाते हुए तो उनको भैया को और बुआ ही थे, वो 2 लोग थे उस समय। और नर्स ने बोला भैया को कि इनके गहने और जो भी हैं कान में कुंडल और जो भी चीज़ें थी सारे ऑर्नामेंट्स निकाल लीजिए। तो उन्होंने निकाल लिए और साथ में उनके गुरुजी का लॉकेट जो उनसे जिनसे जुड़े हुए थे वो था। तो जब नर्स ने वो निकाला ना तो भैया ने कहा बस ये रहने दो। वो कह रहे कि ये तो अलाउड ही नहीं है हॉस्पिटल में लेके अंदर ओटी में लेके जाना। तो वो कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको ये रखना पड़ेगा। बाकी मैंने सारा निकाल लिया। तो नर्स ने कहा कि अब इनसे क्या लड़ाई करनी। तो वो अंदर लेके गए, एक गेट बंद करा और वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था, वहाँ पे निकाल के फिर उन्होंने वो लॉकेट वहाँ पे डाल दिया। और फिर वो उधर ही उनको दिख रहा था विंडो से कि ऑपरेशन हो रहा है। तो ऑपरेशन हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी बुआ एक्सपायर हो गई थी उसी ऑपरेशन में ही। तो जब उन्हें बताया गया कि ऐसा हो गया तो वो बॉडी को लेके आए और वो लेके जाने लग गए। तो मेरे भैया ने कहा कि हमारे गुरुजी का जो आपने लॉकेट निकाल के रखा था वो तो दे दो। तो उन्होंने कहा कि फिर वो उनको समझ में नहीं आया नर्स को कि एक तो मैंने लड़ाई करके बोला था, अब ये मेरे ऊपर ही बोलेंगे। तो वो बोल के चली गई कुछ बोल के चली गई कि मैंने कुछ नहीं करा, मैं जा रही हूँ। और वो फिर अंदर गए भैया, तो उधर ही उन्होंने देख रखा था कि नर्स ने कहाँ पे रखा था लॉकेट। तो जब उन्होंने लॉकेट उठाया तो वो गुरुजी का लॉकेट निकला कन्वर्ट होके, गुरुजी की फोटो थी उसमें। तो मैं जब नेक्स्ट डे पहुंचा बैंगलोर से दिल्ली, तो वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे देख के बोला कि उधर हॉस्पिटल में चमत्कार हो गया था कि
वो लॉकेट गुरुजी का बन गया हमारे गुरुजी से। और कह रहे फिर मैंने मम्मी के सिर पे वो लगाया लॉकेट और बोला कि ठीक है, वो लास्ट प्रसाद जो था वो गुरुजी का ही था उनके पेट में, और गुरुजी ने सिग्नल दिया कि मैंने अपने पास बुला लिया। तो ऐसे करके मतलब जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, और ऐसे गुरुजी हिंट देते रहते हैं, इतने सारे सिग्नल देते रहते हैं कि मैं अपनी प्रेजेंस बताते हैं। अभी जैसे आंटी ने बताया वो फूल गिरा था, तो आंटी मैं अभी सोच रहा था कि गुरुजी आप हो ना यहाँ पे, और ऐसी मैं कुछ मन में बात कर रहा था तो तभी वो हुआ था। तो मेरा भी ऐसे मानना है कि ऐसे कुछ सिग्नल देते हैं तो ऊपर वाला कुछ हिंट देता है। तो बस मैं यही चाहता हूँ, मैं प्रे करता हूँ कि सबको ब्लेस करते रहें गुरुजी ऐसे ही। बस थैंक यू। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग का बहुत बहुत शुक्राना, सेवा का बहुत बहुत शुक्राना, और आंटी आपका बहुत शुक्राना सत्संग में बुलाने का। और सत्संग में तो गुरु जी ने बुलाया सेवा देने का, और इतना प्यारा सत्संग हुआ। सो संगत जी, मेरा सत्संग तो एक्चुअली आई बीन कनेक्टेड टू गुरु जी फ्रॉम अक्टूबर 2021, और तब से आई मीन वो सत्संग में एक्चुअली काफ़ी मेरा लंबा सत्संग है वो, लेकिन आज मैं सिर्फ एक छोटा सा सत्संग जो लास्ट वीक मुझे गुरुजी ने दिखाया। बेसिकली जब से गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई है तो एवरी डे ऐसा लगता है जैसे हमारी लाइफ सिर्फ गुरुजी की वजह से चल रही है। हम पीछे रिफ्लेक्ट करते हैं कि अगर गुरुजी ने ये नहीं दिया होता तो मेरी लाइफ कैसी होती, अगर मेरे को गुरुजी ने ये नहीं किया होता तो मेरी लाइफ कैसी होती। तो मैं कभी कभी जैसे आज सत्संग में अहंकार पे भी आया शब्द, और मैं मन में सोची थी कि जब कभी हम सेवा भी करते हैं या छोटा सा भी काम कर देते हैं, मन में आ ही जाता है कि हाँ छोटा सा भी कुछ करते हैं जीवन में अहंकार से। तो एकदम से आज जब सेवा करते करते ऐसे थोड़ा सा जैसे मैं थोड़ी स्लो चल रही थी आज के टाइम टेबल के हिसाब से, तो मन में थोड़ी सी डाउन है। तो एकदम से अपनी पुरानी कंडीशन याद आई कि जब मैं गुरुजी से नहीं मिली थी तो मुझे कितनी जॉ में पेन रहती थी और क्या था। तो मेरे एकदम से दिमाग में एकदम से खटका हुआ कि ओ अगर मेरी वो लाइफ वापस आ गई तो मैं क्या, आज मेरे साथ क्या होता। तो ऐसे ही मेरा जब आजकल सत्संग सुनते हैं ना तो सत्संग में बहुत आंसर्स मिलते हैं, जैसे यूट्यूब पे या कहीं। तो ऐसे ही एक आंटी सत्संग में हमेशा बताती थी कि भाई गुरुजी से कभी कुछ मांगो नहीं, और मतलब मांगने का यही है कि हम सब लोग डिज़ायर से तो भरे रहते हैं सारा दिन की डिज़ायर, कोई ना कोई चलती रहती है, कोई ऐसा होता नहीं दिन की जिस दिन डिज़ायर ना हो। तो काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी उस चीज़ को काउंटर करने में कि डिज़ायर काउंटर हो जाए और गुरुजी की सिर्फ भक्ति, सच्ची भक्ति करें। तो एक सत्संग में आंटी ने वो कल रात पे एक्चुअली सत्संग था, सेवा के बाद ही था वो, तो मैं यहाँ से गई तो उसके बाद कहते कि जो चीज़ तुम्हारे को मिलनी है वो तो वैसे मिल ही जानी है, अगर जो लिखा है वो तो होना ही है। तो रोज रोज की मंगी जाना, रोज रोज की कहना, मतलब दिमाग में जैसे आंसर गुरुजी देते हैं ना किसी को, जैसे एकदम से कनेक्शन हुआ कि चलो ये बात तो कितनी पते की है, लाइक परफेक्टली फाइन कि भाई जो मिलना है वो ही मिलना है। तो दिमाग से ये निकाल ही देना चाहिए कि ये बच्चों का है, ये घर का हो या जो भी कोई डिज़ायर हो। सो इससे शुक्राना गुरुजी, वो प्रैक्टिस अभी जारी है पर अभी उसमें सक्सेस नहीं है, तो उसकी आप हेल्प चाहिए। फिर जैसे कि संगत जी को पता है मैं गुरु पूर्णिमा में बड़े मंदिर गई थी, मेरा एक पूरा वो सत्संग है ग्रुप में, एंड इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन माई लाइफ। शुक्राना गुरुजी, इस बार गुरु पूर्णिमा पे गुरुजी ने मतलब मुझे जो ब्लेस किया, जो VIP ग्रीन पैस से जो मेरी लाइफ में, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट गुरुजी गेव मी सो मेनी गिफ्ट्स, लेकिन वो एक अपनापन जो गुरुजी ने अपनापन दिया उस दिन, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो वो जो अंकल हैं जिन्होंने ग्रीन पैस दिया था,
वो मुझसे कभी कम्युनिकेशन नहीं करते जब से मैं यहाँ आई हूँ। सिर्फ एक बार उन्होंने शिव पुराण की PDF फाइल भेजी थी, लेकिन लास्ट वेडनेसडे मैंने गुरुजी से एक मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि सत्संग पे हम सैटरडे को चले जाते हैं, ठीक है, सत्संग के लिए हो गया। तो जो नियम गुरुजी के साथ नियम नहीं बन रहा था कि गुरुजी का रोज कनेक्शन के लिए अलग अकेले बैठना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आज मेरा मैसेज संगत जी यही है कि ये क्वेश्चन मेरे माइंड में था कि सत्संग में हम आ जाते हैं और सत्संग के लाइक हमें बहुत क्रेविंग होती है कि हमें सत्संग मिले, और सत्संग इज़ लाइक अ बोनस। सैटरडे को जो ये बोनस है, लेकिन सारी दुनिया सैलरी पे चल रही है, बोनस सब एंड ऑफ द वीक वेट कर सकते हैं, मंथ में, लेकिन सैलरी तो रोज़ चाहिए ना। तो मैं गुरुजी से बातें ही कर रही थी और मेरे दिमाग में एकदम पता नहीं ये रिलेटिव टर्म आई कि सैलरी तो रोज़ मिलनी चाहिए, तो गुरुजी से कनेक्शन तो रोज़ अलग से बनाना चाहिए, क्योंकि सैटरडे को एक सत्संग कर लिया और हो गया बस। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुजी मैं ना जब से आई हूँ मैंने अपनी बिल्कुल आपकी मतलब सेवा नहीं करी, या चरण सेवा जो मैं करती थी वो नहीं हुई थी, अभी काफ़ी महीने हो गए थे। तो मैंने वेडनेसडे को 8:30 बजे गुरुजी से ये अरदास करी कि गुरुजी मैं अपनी सैलरी रोज़ लूँगी, अब तो मैं आपके बस रोज़ ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट मुझे मिल जाए बस वही बहुत है, क्योंकि गुरुजी ने सत्संग में ये भी कहा था कि जो हम घर के काम करते हैं, आपको कोई अमृत वेला करना नहीं, आप अपने परिवार की सेवा करते हो, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है। तो मैंने गुरुजी से बहुत रिक्वेस्ट करी, तो मुझे शाम को 7:45 का टाइम मिला गुरुजी से कनेक्शन का। 7:45 मैंने गुरुजी से कनेक्शन बिल्ड किया, और 8:15 के टाइम 8:30 मेरा बेटा आया कि मम्मी मेरा टेस्ट है, आई नीड यू टू रिव्यू दिस विद मी। तो मैंने गुरुजी से कहा ठीक है। तो संगत जी ये मेरे मन की बात है, मैं गुरुजी से ये समझ रही हूँ कि हमें सत्संग जो है हमारा बोनस है, जो हमारी सैलरी है वो रोज़ गुरुजी से 15-20 मिनट्स अकेले बैठ के कनेक्ट होने के लिए, तो वो गुरुजी हमें दे रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, 8:30 बजे मैंने अपना जो भी मेरा कनेक्शन था उसके बाद मैं गई, 10:30 बजे मुझे बड़े मंदिर से टेक्स्ट आता है, और वही अंकल जिन्होंने मुझे ग्रीन पास दिया था, मतलब उनका कोई टेक्स्ट ऐसे नहीं आता, क्योंकि मैंने आज सिर्फ 20 मिनट गुरुजी से कनेक्ट किया, और 2.5 महीने जब से मैं गई हूँ इंडिया ऐसे कनेक्शन नहीं कर पाई जो एकांत में होना चाहिए। सो 8:30 बजे मैंने कनेक्ट किया, 8:30 बजे तक। 10:30 बजे 10:30 PM में मुझे उनका अंकल का टेक्स्ट आता है कि बड़े मंदिर से दर्शन कर लो शिवलिंग के, और उन्होंने जो भजन मुझे फॉरवर्ड करा साथ ही उसके बड़े मंदिर के दर्शन के साथ, उन्होंने मेरे को जो भजन फॉरवर्ड किया उसके नीचे लिखा ये गुरुजी का फेवरेट भजन है। तो पहले मुझे अपने बेटे का रिव्यू कर रही थी, मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने 11:30 को जब भजन खोला, शब्द खोला, उस पर था गली जोग ना होए, गली मतलब गली जोग ना, जो आज चला भी था शब्द गली जोग। सो मतलब मैं ना, मुझे गुरुजी ने उस दिन क्या किया, जैसे सीधा आंसर दे दिया कि ये सत्संग करने चले जाते हो सैटरडे को, गुरुजी की बातें कर ली, यूट्यूब सुन लिया, नहीं, जो एक्चुअली में गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी से कनेक्ट करके गुरुजी को परमेश्वर की तरह अगर हमने नहीं उनका ध्यान किया, तो वो मतलब आंसर ये था गली जोग ना होए। तो मेरी एक तरह से क्लास ही लग गई उस दिन। पर ये इतनी अमेजिंग बात है कि मैंने इतने दिनों से कुछ भी गुरुजी के लिए कनेक्शन मेरा नहीं था, 2.5 महीने से। उसी दिन उसी रात मैंने किया, और रात को ही बड़े मंदिर से टेक्स्ट आ गया। तो मतलब गुरुजी कितनी बड़ी पावर है, वो 20 मिनट में रिजल्ट ऐसे गुरुजी के साथ बैठ के आपको मिल जाता है। अगर हम एकदम से सिर्फ एक बारी उनके बारे में, मतलब ऐसी दुनिया में कौन से भगवान है जो आपको 15-20 मिनट में अपनी प्रेजेंस की फॉर्म बता दे कि वो सुन रहे हैं। तो गुरुजी शुक्राना ये मेरी आंखें खोलने का, और अपनी मेहर करो कि हम लोग आपके साथ अपनी सैलरी आपको रोज़ के
शुक्राना। कोई और सत्संग अपना शेयर करना चाहता है तो प्लीज करो। बहुत ब्लेसिंग मिलती है, जितना सत्संग शेयर करोगे उतनी ब्लेसिंग है गुरु जी की। दीदी, कोई सत्संग शेयर करना है? आपके क्या चेंजेस आए आने के बाद? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू गुरु जी फॉर दिस ब्यूटीफुल दरबार। थैंक यू रीता आंटी। सबसे पहले तो शुक्राना गुरु जी का, इतने प्यारे इतने अच्छे संगत से मिलवाने का। आपके आशीर्वाद से ऐसे संगत से हम जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं बताना चाहूँगी कि मेरी पूरी फैमिली ग्रेजुअली बहुत एक के बाद एक मैं बोल सकती हूँ, सब लोग जुड़ते जा रहे हैं गुरु जी से। सबसे पहले मेरी सिस्टर इन लॉ गुरु जी से जुड़ी थी कुछ साल पहले, उसने मुझे जोड़ा गुरु जी से। फिर मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मैं अपने सिस्टर इन लॉ के यहाँ गई थी और मैंने गुरुजी का एक फ़ोटो जिसमें गुरुजी ऐसे करके स्माइल कर रहे हैं, तो माफ़ करिए गुरुजी, तो मैंने बोला ऐसे कैसे गुरुजी है, ऐसे करके स्माइल कर रहे हैं, ये कौन से गुरुजी हैं? तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया कि आपको खुद से वो आंसर आएगा दीदी, मैं आपको नहीं बताऊँगी। मैं उसके यहाँ 1 वीक रही थी और एक रात जब मैं सोने गई तो मैं गुरुजी के बारे में ही सोच रही थी कि ये कौन से गुरुजी हैं, आज तक मैंने देखा नहीं और ऐसा कैसे स्माइल कर रहे, ऐसा सोचते सोचते सो रही थी मैं। और मुझे कुछ सुबह उठी और गुरुजी का कुछ तो ऐसा ड्रीम आया मुझे गुरुजी का, और मैं ऐसे उठी और उठ करके मैंने अपना मोबाइल उठाया तो उसमें मुझे आई वॉज इन म्यूज़िक। तो ये बहुत बड़े म्यूजिशियन है जिनसे मैं बहुत दिनों से कनेक्टेड हूँ, तो उन्होंने मुझे गुरुजी का एक बहुत ही प्यारा शब्द भेजा हुआ था। तो मैं एकदम से डर गई कि इतने सालों से मुझे सब शेयर कर रहे हैं पर कभी भी गुरुजी का इन्होंने नहीं भेजा। तो मैं भाग के गई और अपने सिस्टर इन लॉ को दिखाया, तो उसने बोला कि गुरुजी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो उसने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप उठा के दिया, येलो कलर के ड्रेस में जो है, बोला कि आप इसको उनको लेके चलिए। तभी मैं ब्राज़ील में रहती थी, मैं गुरुजी को लेके अपने घर में आ गई, अपने मंदिर में बिठाया और गुरुजी की पूजा रोज करने लग गई। जैसे मैं बाकी भगवान की करती थी वैसे गुरुजी की पूजा करने लग गई मैं, पर कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। मैंने रख लिया था मंदिर में, पूजा कर रही थी और कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। पर पूजा करते करते मेरे हस्बैंड मेरे से पहले कनेक्ट हो गए गुरुजी से, और इन्होंने कभी भी ऐसे बैठ के गुरुजी को बैठ के पूजा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। पर जब मैं यूएस आई तब मैंने ये फील किया कि मेरे से ज़्यादा कनेक्ट मेरे हस्बैंड हो गए। और आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गुरुजी फॉर दिस, बिकॉज मैंने देखा है कि कपल्स के बीच में या तो हस्बैंड मानते हैं, कभी वाइफ नहीं मानती है, या फिर वाइफ इज़ कनेक्टेड एंड हस्बैंड इज़ नॉट कनेक्टेड। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट में यू हैव टू फाइट और कि साथ में पूजा करते, साथ में सत्संग जाते। तो आई गॉट सो लकी कि माई हस्बैंड गॉट कनेक्टेड एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैड अ ब्यूटीफुल सत्संग एट आवर प्लेस लास्ट वीक। और जिन लोग आए थे थैंक यू सो मच, और जो लोग नहीं आए उन लोगों ने भी मुझे कॉन्टैक्ट किया और सब ने मुझे बहुत आशीर्वाद भेजा। थैंक यू सो मच संगत जी। और अभी मेरी मम्मी पापा भी आए मेरे पास, तो अभी मेरी मम्मी भी कनेक्ट हो गई गुरुजी से, बिकॉज सिस्टर लॉ के पास गई फिर मेरे पास आई, तो उन्होंने गुरुजी को फील करना स्टार्ट किया और गुरुजी ने उनको दर्शन भी दिया। मैंने एक सत्संग में बताया था, फ्रेग्रेंस आए उनको और बहुत सारी चीज़ें उनको, बटरफ्लाइज दिखती हैं और वो भी कनेक्ट हो गई। मेरी दीदी रशिया में रहती हैं, शी ऑल्सो वेंट टू शिकागो एट माई सिस्टर लॉज प्लेस। वो शंकर जी की बहुत बड़ी भक्त है, बहुत बड़ी भक्त रही है और जितने ज्योतिर्लिंग हैं सबके दर्शन उन्होंने किए हैं।
तो एक बार वो बता रहे थे मुझे कि वो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके एक बार उन्होंने शिव से पूछा कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ। तो उसको ऐसे आवाज़ आई कहीं पे तो थी सोमनाथ या कहीं, उनको बोला माँ के पास जाओ, तुमको अभी माँ के पास जाना है। तो वो फिर माँ कामाख्या के पास गई, अलग अलग माँ के पास गई। फिर माँ कामाख्या के पास जब वो पहुंची तो वो बता रही थी कि वो बहुत रो के उसने माँ कामाख्या से बोला कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं भटक रही हूँ, मैं शिव के पास इतना जाती हूँ, शिव के पास आकर के शिव मुझे भेज देते हैं आपके पास, मुझे कोई तो गुरु दो, मुझे गुरु दीजिए, ऐसे करके उसने माँ से बोला। और फिर वो सिस्टर इन लॉ के पास आई और गुरुजी दिख गए। तो उसने पूछा ये कौन है, उसने बोला ये गुरुजी है। तो उनको अजीब सा लगा, उन्होंने देखा, फिर बोला ये क्या है और मुझे जानना है। उसी दिन सत्संग था और उसने मेरी सिस्टर को वो सत्संग में वो लेके गई। वहाँ पर वो बहुत रोई और सत्संग में बैठी, और जब भी वापस आई तो एक अननोन आंटी ने फ़ोन किया मेरी सिस्टर इन लॉ को, दीदी को बोला कि मैं तुम्हारी दीदी से मिलना चाहती हूँ। उसने बोला दीदी ये जगह पे होटल में अभी जा रही हैं। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, मिल लेती हूँ। 2 आवर्स के ट्रेन लेके उस वो ओल्ड लेडी शी वेंट देयर, स्वरूप लेके गई और ब्लेस्ड लोटा लेके गई वो दीदी के लिए, और उन्होंने बोला ये तू रख ले, मुझे गुरुजी का आदेश आया है कि ये आप तक पहुँचाया जाए। तो दीदी ने बोला मैं इनको जानती नहीं हूँ, ये कौन है, और गुरुजी उनके पास आ गए। फिर उन्होंने बोला कि गुरुजी ने मुझे चरण के लिए भी बोला था, मैं लाना भूल गई, तो तुम मेरे घर आ जाओ तो मैं दे देती हूँ। तो दीदी ने बोला नहीं, कल मुझे ये सिटी घूमने जाने का है। वो आंटी बोलती है मैं तो उसी सिटी में रहती हूँ, तुम आ जाओ। तो दीदी ने बोला ये क्या हो रहा है। फिर दीदी गई वहाँ पे उनके यहाँ, उन्होंने अपने घर में दीदी को लिया और सब ऐसे करके दीदी को सब कुछ गुरुजी ने ब्लेस किया। दीदी वहाँ से मेरे घर पे आई, अटलांटा आई शिकागो से। तब तक मैं जुड़ी रही हूँ गुरुजी से, मेरा वो फेस था। और मैं सोचती थी कि मैं इतना पूजा करी हूँ फिर भी गुरुजी से ऐसे क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रही। फिर मैं गुरुजी से पूछती थी, सब कुछ ठीक है गुरुजी, अगर मेरी दीदी ने बोल दिया मुझे कि गुरुजी ऐसा करके, क्योंकि मुझे ऐसा आता था क्वेश्चन कि दीदी तो शिव भक्त है, इतनी बड़ी भक्त है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मेरी दीदी ने ऐसा दीदी के पास अगर ये गुरुजी आते हैं तो दीदी क्या शिव को छोड़ के गुरुजी गुरुजी बोलेगी या वो शिव ही बोलेगी। मेरा ऐसा सोचना था कि शिव 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 वो करती है, उसकी जगह गुरुजी गुरुजी वो करेगी क्या, मेरा ये सवाल था। उसी टाइम पे दीदी आई थी और वो मेरे घर में गुरुजी को देख के बोलती है गुरुजी तुम्हारे पास भी है। तो मैंने बोला देखो मुझे आंसर चाहिए था दीदी, आपसे ही आंसर चाहिए। वो मंदिर में बैठी और मेरे साथ उसने पूरा सत्संग किया कि देखो मैं शिव के पास गई, उन्होंने मुझे दुर्गा के पास भेजा, दुर्गा ने मुझे, मैंने गुरु मांगा तो मुझे ये गुरु मेरे हाथ में, वो खुद कौन लेके आए मुझे नहीं मालूम। एक लेडी आई, वो ओल्ड लेडी, वो भी शी गेव मी ए स्वरूप, तो तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने है, उसने ऐसे बोला। उस दिन से मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरे मंदिर में आके वो आंसर दिया। तो फिर तो कुछ जवाब ही नहीं था मेरे पास, आई हैव नो क्वेश्चन। उसके बाद मैं एकदम, गुरुजी ने मुझे चुप करा दिया। तो आज दीदी भी गुरु में है, मेरी पूरी फैमिली गुरु में है, मेरे हस्बैंड गुरु में है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जितने भी नए संगत हैं उनको मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आपको जो भी क्वेरीज है मेरे एक्सपीरियंस से, यू कैन लिसन टू द सत्संग जो होते हैं और शब्द जो होते हैं, 101% वो शब्द में आपके आंसर्स होते हैं। अगर आप दिल से सुनते हैं वो शब्द तो कहीं ना कहीं आपको उसके आपके आंसर्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ छूटा चीज़। जैसे लास्ट शब्द मेरे घर में जो अंशुल अंकल ने चलाया था, एक था कि आप मन्नत मांगते हो और फिर भूल जाते हो, फिर बोलते हो भगवान मैं तो मजाक कर रहा था, वो तो ऐसे ही बोल दिया मैंने, एक शब्द वो आए थे, मैंने सुन लिया था अपने घर में और भूल गई थी मैं। इतने एक सप्ताह के बाद 1 वीक हो गए, अभी कल ही मुझे अचानक से नींद में ऐसा आया, वो शब्द ध्यान में आया और मुझे मेरी एक मन्नत याद आ गई कि मैंने अपने बेटे की मन्नत मांगी थी। यानी हैड कम फ्रॉम न्यूयॉर्क इंटर्नशिप के बाद, हैड कम टू जस्ट फॉर अ वीक, और वो आज ही गया है, सुबह में ही लेफ्ट। और मुझे कल ही ध्यान आया कि अरे मैंने, मेरे घर में वो शब्द चला था कि तुमने मन्नत मांगते हो, एकदम रो रो के मांगते हो और जब पूरा हो जाता हो तो भूल भी जाते हो। तो मुझे वो मन्नत याद है कि अरे वो तो प्रॉब्लम में था और मैंने उस समय बोला था कि
कि मैं उसके साथ आऊँगी आपके पास और प्रणाम करूँगी करके, और इतनी बार आए और मैं भूल गई। उसको आज सुबह जाना था, रात को शाम को मैं उसको लेके गई जहाँ पे मैंने मन्नत मांगा था। गेट बंद था, वो बोला मम्मा चलते हैं, गेट तो बंद है। मैं बोली कुछ नहीं, तू आ जा, गेट बंद है, कार से उतर, गेट बंद में ही हम मन्नत पूरा करेंगे। मैं गई, अच्छे से उसके साथ प्रणाम किया, मन्नत किया, माफ़ी मांगा गुरुजी से, बोला कि जो भी मैं भूल गई थी, सॉरी गुरुजी आपने याद दिलाया, शुक्राना। मन्नत पूरा किया और घर वापस आ गई। इसके लिए शब्द जो चलाते हैं यहाँ पे, जो भी चलता है उसमें आपके आंसर्स है, आप बस दिल से सुनो। बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और कोई अपना सत्संग शेयर करना चाहता हो प्लीज करो। एक छोटा सा मैं आपको सुनाती हूँ सत्संग। ये मेरा तो नहीं है सत्संग, अभी कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर ने मुझे सुनाया। वो दिल्ली में रहती है और लॉयनेस क्लब की गवर्नर है। तो उनका कोई अवार्ड फंक्शन था ऋषिकेश में। तो भाई इसने अपनी गाड़ी लेके जानी थी, इतने में एक ने फ़ोन किया कि नीलम जी आप मेरे साथ चलो। कहती जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी तो गुरुजी के शब्द चलने शुरू हो गए। कहती मैंने कहा इसको तो मेरे बहन मानती है, तो ये तो गुरुजी है, तू भी मानती है। आप सब ने शायद जो दिल्ली के होंगे जानते होंगे, छाबड़ा सिल्क साड़ी बहुत मशहूर है, वो वंदना छाबड़ा जी उन्हीं की है। तो उन्होंने जैसे ही कहा कि भी मेरी सिस्टर भी मानती है, उसने मेरे को ही सत्संग सुनाए। कहती अगर तुम मेरा सत्संग सुनोगे तो तुम हैरान हो जाओगी। वो कहती क्या है? कहती मेरी हार्ट बीट बहुत तेज चलती थी, इतनी तेज चलती थी किसी कार्डियोलॉजिस्ट को पता नहीं चलता था। अंत में एक कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि आप एम्स में चले जाओ और पेस मेकर लगवा लो, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कहती अब जिस दिन जाना था उससे 2 दिन पहले मैंने सोचा फिर तो हॉस्पिटल में चले जाना है, पता नहीं जीना है क्या होना है, तो मैं आज अच्छे से खाना खाऊंगी। कहती मैंने 2 पराठे बनाए, एक खाया, दूसरा उठाया, उसके ऊपर मोर बना हुआ पूरा बिल्कुल क्लियर। मैं आपको ग्रुप में शेयर भी करूंगी वो फोटो, मोर बना हुआ। उसके मन में ये दुविधा आ गई कि पता नहीं गुरुजी क्या चाहते हैं कि ये मोर बना आ गया, खाऊं कि नहीं खाऊं। उसने उस रोटी को लपेट के रख दिया कि सुबह किसी संगत से पता करूंगी, उसके बाद मैं ये खा लूंगी। नेक्स्ट डे वो उठी है, वो रोटी नहीं थी घर में, जबकि वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ वहाँ रहते हैं, बच्चे उनके बाहर हैं, वो रोटी नहीं थी। अब उसको लगा क्या हो गया, कहाँ गायब हो गई, क्या मेरी ये ब्लेसिंग थी, क्या था, उसकी चिंता रही। पर जिस दिन उसने जाना था हॉस्पिटल, उसने सुबह कलश में पानी रखा होता है ना जैसे गुरुजी के आगे, वो कलश को उठाया तो कलश के अंदर शिव पार्वती की पूरी परछाई। अब वो बड़ी हैरान, कहती शिव जी पार्वती जी की आ गई है। कहती चलो ठीक है। उसके बाद वो एम्स में एडमिट हो गई। शी वॉज इन ICU। उसके हस्बैंड बाहर बैठे थे। थोड़ी देर बाद वो कहते मैंने देखा कि नर्स से कोई आदमी बातें कर रहा है और उसके हाथ में फूल है। उनको और कुछ नहीं दिखाई दिया, ये दिखाई दिया कि वो पूछ रहे वंदना छाबड़ा कौन है। तो कहते थोड़ी देर बाद नर्स बाहर आई, उससे पूछा कि अभी आपसे कौन पूछ रहा था मेरी वाइफ के बारे में। कहते मेरे को तो कोई नहीं मिला, कोई नहीं मेरे पास आया। कहते मैंने कहा शायद मेरे मन का भ्रम होगा, क्या होगा। नेक्स्ट डे जब डॉक्टर उनको पेस मेकर लगाने के लिए लेके जाने लगे, तो रात की जो सारी रीडिंग थी उस टाइम के बाद की बिल्कुल एक्यूरेट थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई पेस मेकर नहीं लगा। डॉक्टर ने कहा आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो गुरुजी कृष्ण में बहुत करते हैं। तो उसके बाद उसको कहा, गुरुजी ने सपने में आके तुम लड्डू का प्रसाद बांटो, मंगलवार को बांटना लड्डू का प्रसाद। लड्डू लेके आई, लड्डू के ऊपर पूरे हनुमान जी बने हुए। तो गुरुजी की तो जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी। कोई और सुनाना चाहता प्लीज? आप सुनाओ। हाँ सुनाओ बेटा। शायद गुरुजी चाहते होंगे मैं कुछ बोलूँ। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जो ये बात सब कह रहे हैं कि आपको हर चीज़ का जवाब मिलता है, वाकई मिलता है और बहुत जल्दी
मिल जाता है गुरु जी से। मेरे को बड़े दिनों से ना मतलब कोई ना कोई फॉर्म में मतलब सपना आ रहा है और गुरु जी दिख रहे हैं, अजीब सी मतलब एक फीलिंग सी कि मैं सबको बताऊं कि मैं आज जो भी हूँ, अगर मैं ठीक ठाक आप सबके सामने बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ कुछ, तो उसके लिए गुरु जी की ही ब्लेसिंग है। बिकॉज आई हैड अ टाइम लास्ट ईयर कि मेरे को पता नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होगा, क्या मेरे लिए अनफोल्ड होगा, बट थिंग्स हैपेंड इन अ वे कि जो होता है हमको लगता है ना कि ये क्यों हुआ हमारे साथ, उस टाइम पे हमें ये फीलिंग आती है कि हम क्यों, व्हाई मी, मेरे साथ में क्यों। पर हर एक चीज़ का एक टाइमिंग होता है और वो टाइमिंग गुरु जी से अच्छा किसी को नहीं पता, बिकॉज ही नोज द बिगर पिक्चर। हमें दिख रहा है अभी, चलो हफ्ते बाद भी वैसे हमें नहीं पता हम क्या करेंगे, हम हद से हद यही सोचते हैं चलो हम ये करेंगे, हफ्ते का प्लान, दिन का प्लान करते हैं, बट ही नोज द बिगर प्लान। तो अब जैसे हर एक चीज़ मैं देख रही हूँ अनफोल्ड हो रही है, सामने दिख रहा है, तो अब मुझे लग रहा है कि आपकी टाइमिंग ना मतलब बॉलीवुड मूवी को भी पीछे छोड़ दे मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। तो अब मेरे को सपने में जो ये आ रहा था बार बार कि मैं सबको बोलूँ कि गुरुजी ने मुझे ठीक किया, या गुरुजी ने मेरे साथ में मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करी जो जिनकी वजह से मेरा फेथ तो बड़ा ही बड़ा। मेरे हस्बैंड जो बिल्कुल भी मानते नहीं थे, मतलब उनको मैं अगर गुरुजी का जिक्र भी करती थी ना तो यूज्ड टू लाइक कि ये क्या है, मतलब कुछ भी बोल रही है, ऐसे थोड़ी होता है, ये नहीं है ऐसे। तो अब वो मुझे रोकते नहीं हैं। अब मैं सत्संग में आती हूँ, भले वो मेरे साथ में नहीं आते, बट ही डजंट से एनीथिंग। तो हम अब जैसे मेरी बेटी अब कॉलेज अभी शुरू कर रही है जॉर्जिया टेक में दिस ईयर, तो वहाँ पर अभी उसका अपार्टमेंट सेट कर रहे हैं। तो जब पूजा गृह प्रवेश का जब करने लगे तो मैंने कहा कि गुरुजी के बगैर तो पूजा इज़ नॉट कंप्लीट। तो जो पंडित जी आए, लक्ष्मी जी, गणेश जी, मतलब जो भी हमारी होती हैं मूर्तियाँ रखी, और साथ में गुरुजी थे। तो मतलब मेरे हस्बैंड भी साथ में बैठे और वो भी गुरुजी को फूल ऑफर कर रहे थे, ये सब। तो मुझे लगा कि ये इनको ही सब पता है कैसे सबको वो करना है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। माय हस्बैंड वाज लाइक जैसे बिल्कुल भी नहीं, बट अब थोड़ा थोड़ा वो चेंज आ रहा है। और बस गुरुजी को आप मानते रहो, आप उनको सुनते रहो। मतलब शुरू में मैं बहुत सारी चीज़ें मांगती थी, हर एक बात के लिए बस ये दे दो मुझे, वो दे दो मुझे, वो दे दो। अब मुझे लगता है कि आप जो करोगे ना आप अच्छा ही करो। अगर ऐसा भी टाइम है तो ये टाइम कब, ये मुझे ऐसी फीलिंग आएगी कि ये इसीलिए आया था क्योंकि कुछ उसके बाद इतना अच्छा होना था। सो व्हेन यू नो इट गेट्स टू डार्क एट नाइट, द मॉर्निंग इज एज I mean, the more dark it is at night, the morning gets too beautiful, you know, following that. बस अब और एक बारी मैं फिर से बताना चाहूँगी कि मैंने गुरुजी को साक्षात देखा हुआ है, और वो उनका जो स्वरूप है, वो जो उनका मतलब जो उन्होंने पहना था, जो पहन के चल रहे थे, उनकी जूतियाँ, उनका फेस, उनका मतलब हाथों की मूवमेंट, जो मतलब आप जो मैंने जो देखे हैं कोई वीडियोस में, the way he moves his fingers and his face like this, actually he used to do like that. I have seen that in person. Guruji sitting right in front of me. तो मैं जब ये चीज़ सोचती हूँ ना, ठीक है, उसके बीच में मैं ऐसे कनेक्ट नहीं हुई थी। मैं उनके पास गई, वो एक ही बार मैंने वो लाइव दर्शन करे, फिर नहीं वो कनेक्शन हुआ। दोबारा से मैं वो ऐसे संगत नहीं बन पाई कि मैं हर मतलब इसमें जाऊँ। और काफ़ी गैप के बाद में फिर जब मेरी मम्मी जुड़ी तो मेरे फेसबुक के ऊपर बस गुरुजी दिखते रहते थे, until and unless I got like completely connected to him. तो जब वो कनेक्शन हो गया फिर वो थोड़े कम हो गए as if he was just trying to remind me that you know what, I'm there, I was always there. तो बस अब यही चीज़ मुझे बोलनी है कि गुरुजी आपका जितना भी मैं शुक्र करूँ, शुक्राना करूँ, उतना कम है। अनंतम 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 शुक्राना। आप सबको ब्लेस करना, सब पर अपनी कृपा रखना, और बच्चों का स्पेशल ध्यान रखना। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब जब ये बात चल रही है कि गुरु जी कब कब क्या क्या करते रहे हैं, तो मैं भी एक अपने साथ होता हुआ एक वाक्य बताना चाहती हूँ। ये बात है 19 की।
जैसा कि मैंने 1-2 बार पहले भी बताया हुआ कि मेरी फूड पाइप में प्रॉब्लम लंबे समय तक चल रही थी, इट वॉज श्रिंक। तो एक बार लगातार 3 डेज तक मेरे पानी नहीं गया अंदर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। तो मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए, दैट वॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल। पहले हमने डॉक्टर को घर पर दिखाया और देन उसने कहा कि आप वहाँ पे आइए, मैं आपका एंडोस्कोपी करूँगा। तो जब एंडोस्कोपी तब तक आई एम वेरी बैड टू से कि मैं तब तक गुरुजी से प्यार नहीं करती थी और मेरे हस्बैंड बहुत प्यार करते थे और हमारे बीच बिल्कुल इसी तरह का फर्क था कि वो जब कुछ कहना या सुनाना चाहते थे मैं यूँ ही सुन लेती थी अनमने मन से, और वो बहुत अच्छे से जानते थे कि मैं इंटरेस्ट नहीं लेती। पर फैमिली में एक भी प्यार करे ना गुरुजी से, एक भी अगर डेडिकेटेड हो जाए तो दूसरा तो अपने आप ही साथ ही कर लेता है। सो वही मेरे साथ हुआ। और मेरे हस्बैंड की एक और प्रॉब्लम थी कि बीमार मैं होती थी और शक्ल उनकी बीमारों जैसी हो जाती थी, बहुत टेंस हो जाते, बहुत उदास और पेशेंट वो लगते। खैर हम उस डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने डाउट डाला कि आपको इतने दिन अगर नहीं पास होगा कुछ भी तो मे भी इट्स कैंसर, क्योंकि उन्हीं दिनों किसी हमारे कलीग का हुआ भी था ऐसा कुछ। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत टेंस थे कि मुझे क्या होगा। सबसे पहले हम लोग गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे बहुत अच्छे कोई हाइजीनिक नहीं होते। तो मेरे मन में ये आया कि आ तो गए हैं इस डॉक्टर के कहने पर भगवान जी मेरा ना पहले नंबर पर एंडोस्कोपी करा दो, और ताकि यू नो एंटर करते हैं थ्रू द माउथ, अंदर आपके अंदर तक डालते हैं, फूड पाइप तक वो पूरा जाता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, कैमरा, एंड इट्स पेनफुल टू। तो मैंने सोचा कि ऐसा हो जाए कि बाहर तो देखा बहुत अलग अलग तरह के लोग थे, जैसा कि हमें अब शर्म आती है सोच के कि हम दूसरों को अपने से कमतर मान रहे हैं, पता नहीं कौन किस फील्ड में हमसे कहाँ ऊपर है, वी नेवर नो। बट गुरुजी ने मेरी बात सुनी, शायद मेरी तो नहीं, मेरे हस्बैंड की सुनी और मेरा नंबर एक आ गया। सबसे पहले एंडोस्कोपी हो गई एंड उन्होंने रिपोर्ट दी कि आपके फूड पाइप में बहुत बड़ा एक ट्रायंगल शेप का बोन निकली है, हड्डी का टुकड़ा निकला है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, हड्डी का टुकड़ा कहाँ से आ गया? बट उन्होंने और भी मुझे कुछ बताया कि आपके 33 mm का कोई होलो है, स्पेस है जहाँ पे आपकी एयर रुक जाती है, इसकी वजह से आपका कुछ पास आउट नहीं होता। वो सब मुझे समझा रहे थे अंदर डॉक्टर्स। और इतनी देर में जब मैं बाहर आई तो मैं ठीक थी, जो भी हल्का सा पेन था। मेरे हस्बैंड बोले किरण अभी डॉक्टर आए थे, वो मुझे कह गए हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अब तुम बिल्कुल ठीक हो? एक मिनट, एक ही तो गेट है, एक ही रास्ता है वहाँ से आउटिंग का, एग्जिट का, तो आपके पास कहाँ से वो डॉक्टर साहब आ गए? डॉक्टर साहब तो मेरे साथ खड़े, डॉक्टर को खन्ना तो मेरे पास खड़े हैं और वो मुझे गाइड कर रहे हैं कि तुम्हें क्या है, क्या नहीं है, क्या करना और क्या नहीं करना, और सारी मेडिसिन लिख के दी। नहीं, वो अभी मेरे पास बाहर खड़े थे वाइट कोट में, कोटी भी पहना हो, वो तो ऑफ द ड्यूटी आए थे, आज उनकी बॉडी में ड्यूटी नहीं थी। तो खैर मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आज जब मैं सबकी बातें सुन रही हूँ तो मुझे वो चीज़ याद आ रही है और हम लोगों ने डिस्कस भी किया। मेरे हस्बैंड ने भी एज यूजुअल कहा अच्छा तो फिर गुरुजी आए होंगे। एज यूजुअल मैंने सोचा चल वो मानते हैं आए होंगे गुरुजी, बट आज क्योंकि मैं खुद गुरुजी से बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा विश्वास है, अटूट विश्वास है। वो बात जो पुरानी है आज मुझे रिमाइंड हुई कि वो वास्तव में गुरुजी आए थे, क्योंकि मुझसे पहले बाहर उनको इन्फॉर्म करना था कि मैं ठीक हूँ, और उनके चेहरे पे जो वो उदासी थी उसको गुरुजी ने दूर किया। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गुरुजी। फॉरगिव मी, माफ़ करिएगा मुझे, बहुत सारी ऐसी ना जाने कितनी गलतियाँ, कितने अवगुण, कितना घमंड, एवरीथिंग आई हैव। सो गुरुजी अब मुझे माफ़ करेंगे
सीधा रास्ता दिखाया है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं संभाल भी रहे होंगे। शुक्राना मेरे तो, और शुक्राना आपका। जय हिंद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने सत्संग कराया। आज जो सत्संग शेयर हुए हैं उसमें शब्द के बारे में बता रहे कि गुरु जी की शब्द की वैल्यू क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, और मांगने पे भी ये आंटी ने भी सत्संग शेयर किया और एक और आंटी ने भी सत्संग शेयर किया। आज गुरु जी ने एक शब्द चलाया था, मांगना मांगन नीका, हर जस गुरु से मांगना। नीका का मतलब होता है यूजलेस, समथिंग दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मांगना मांगन नीका, हर जस गुरु से मांगना। तो आई थिंक जो समझा रहे हैं कि जो भी हम मांग रहे हैं शायद गुरु जी से, इट इज़ नॉट रिलेवेंट, इट इज़ वेरी टेम्परेरी, किसी काम का नहीं है वो। तो और साथ में ये भी बता रहे हैं कि मांगना क्या है, हर जस गुरु से मांगना। हर इज गुरु जी परमात्मा, उनका जस करना। जस इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। उनके सत्संग करना, उनकी वडियाई शेयर करना, जो गुरु जी ने हमारे लिए किया है वो शेयर करना। तो आज का सत्संग बहुत ब्लेस्ड है। लोग सत्संग भी इतने सारे शेयर कर रहे हैं और वही गुरु जी शब्द में सिखा भी रहे थे कि हर जस गुरु के मांगना। फिर जो उसके आगे एक और शब्द गुरु जी ने चलाया, गंदी जोग ना हुई। जैसा आंटी ने भी कहा, इस शब्द पे गुरु जी बहुत मौज में आ जाते थे। और रघुबीर अंकल शेयर करते हैं कि वो जल प्रसाद मंगाते थे और सारी संगत में जल प्रसाद बांटते थे। आज जब ये शब्द चल रहा था तब गुरु जी को लंगर प्रसाद का भोग लगा था और वो सब लंगर प्रसाद हम सब ने खाया। तो ये गुरु जी की मौज है कि अगर वो इन हिज फिजिकल फॉर्म वो सब लोगों को जल प्रसाद बांटते थे, तो आज वो इन हिज एक्चुअल फॉर्म वो हम सबको वो लंगर प्रसाद खिला रहे हैं। तो वी शुड कंसिडर आवरसेल्व्स वेरी लकी कि हम इस दरबार में गुरु जी के सामने बैठे हैं। और गुरु जी से यही है अरदास कि गुरु जी ऐसे ही आप सत्संग कराते रहिए और सारी संगत को ब्लेस करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्रिया। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मुझे इस थेरेपी में करा देनी चाहिए बिकॉज मुझे फायदा है। लेकिन बहुत कम एज थी मेरी भी और बच्चे भी बहुत छोटे थे, तो उतना सारा रेस्ट करने का स्कोप नहीं था मेरे पास। और दूसरा मेरी मम्मी का भी हुआ था यही सेम सर्जरी एंड शी वाज नेवर द सेम। वी एक्चुअली लॉस्ट हर couple of years after that because she never recovered. तो मुझे मन में डर था कल नेक्स्ट टाइम साफ में बोला कि मुझे अभी सर्जरी नहीं करानी टाइम चाहिए, तो आप मुझे बस कोई ऐसे मेडिसिन की थोड़ा टाइम निकाल दो। आई वाज ऑन हार्मोन सिंस देन, तो बार बार चेंज हो रहे थे। किसी से डिजीनेस होती है, किसी से चक्कर आते हैं, वो नॉजिया रहता है, तो लाइक हम लोग बस चेंज करते जाते थे हर दूसरे ईयर। फिर एक मिला कोई एक हार्मोन जो मुझे सूट कर गया एंड 4 years से मैं उस पर थी। और डॉक्टर के हिसाब से मुझे एवरी 6 months स्कैनिंग के लिए जाना होता था, बट सिंस कोविड स्टार्टेड आई
आई नेवर गेट अ चांस टू, एक था पता नहीं क्यों कि डॉक्टर के नहीं जाना तो मैं कभी गई नहीं, वो क्या ठीक है। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी मेरी वो प्रॉब्लम धीरे धीरे ऐसा नहीं बोलूँगी कि कम्प्लीटली चली गई, लेकिन आई वॉज फीलिंग कि आई एम गेटिंग बेटर। तो अभी मई में मैंने डॉक्टर को कॉल किया, अपॉइंटमेंट लिया, मुझे लगा अब टाइम हो गया तो मुझे जाना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि आई एम गेटिंग बेटर, ये लाइक दिस इज़ गेटिंग बेटर, दिस थिंग इज गेटिंग बेटर, दैट आई वेंट ब्लीडिंग इज नॉट दैट बैड एनीमोर। तो डॉक्टर ने बोला कि इट्स गुड, बट मैं अपनी बात नहीं मान सकती, मुझे स्कैनिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि क्या करो स्कैनिंग, तो मैंने मेरा स्कैनिंग शेड्यूल हुआ, हम गए पूरी स्कैनिंग सारे रिपोर्ट डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि आई नो आई इट्स अ गुड न्यूज़ बट आई वांट टू मीट यू। तो मैं गई वहाँ, उसने बोला कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माय होल करियर आई एम टेलिंग समवन जिसको इतने सारे फॉलोअर्स थे, मैं उसको 6 ईयर्स से बोल रही हूँ, उसके साथ मैं 6 ईयर्स से जुड़ी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेकेंड थर्ड फोर्थ ओपिनियंस दिए थे कि मुझे सर्जरी ना करानी पड़े। तो फिर 6 साल में मेरे को बहुत खुशी हो रही बोलती है मुझे आप सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव एनी फॉलोअर्स इन योर यूट्रस। एंड लाइक मेरे एंटायर करियर में मैं पहली पेशेंट को बोल रही थी कि जिसको मैं सर्जरी के लिए पुश कर रही थी उसको सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। I don't know how it happened. I don't have any answer, but you don't need this surgery now. But एक दो साल हम और स्कैनिंग जैसे करते रहेंगे, so we make sure. But I know who's there. So we must be honest. So this is one thing. The second thing, because I'm 40 now, so mammogram भी चाहिए. So mammogram भी कराया इस बार मैंने, ये reports आए कि there is something which is not right, so हमको डायग्नोस्टिक मैमोग्राम करना था। मैंने कहा मम्मी जी क्या हो रहा है, मतलब होता है ना कि उस टाइम पे ही मतलब उसका भी था कि मेरी सोनोग्राफी की अपॉइंटमेंट थी, जब वो सोनोग्राफी और स्कैनिंग जो भी उसने करने थे उस सबकी अपॉइंटमेंट भी आने वाली थी और एक मैमोग्राम भी। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि लाइक अब तो सब कुछ ही खराब रहा है, कि अब तो मैमोग्राम में भी कुछ है, फाइब्रॉइड्स में तो था ही, पता नहीं उसकी रिपोर्ट भी कैसे आएंगे ना। तो खराब आया। फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक की अपॉइंटमेंट मिली, वहाँ गई तो उसने बोला कि नहीं आपको गलत अपॉइंटमेंट दे दिया है हमने, आपको दोबारा आना पड़ेगा, इसमें 3 आवर्स लगते हैं। अच्छा 3 आवर्स लगते हैं, ऐसे क्या क्या करने वाले थे। समटाइम्स अगर मैमोग्राम अच्छा नहीं आता तो हमें सोनोग्राफी भी करनी पड़ती है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा से अपॉइंटमेंट लिया, 2 दिन की बात का है ना। तो फिर उन्होंने फिर से मैमोग्राम किया, दैट वॉज रियली पेनफुल। उसने बोला कि इट्स नॉट राइट, सो हमको सोनोग्राफी भी करनी पड़ेगी। फिर सोनोग्राफी की बहुत देर लगी वहाँ पर, लाइक मैं सिर्फ गुरु जी का नाम लेती थी, डर नहीं लग रहा था ऐसे उस दिन, पता नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ फिर भी कुछ मतलब कि मैं बस नाम लेती थी गुरु जी कुछ नाने का। तो फिर उन्होंने किया, कहते ठीक है आप घर जाओ, आपके डॉक्टर को हम रिपोर्ट भेजते हैं। मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी, मुझे यही बोला कि किसी से मिलाओ पहले, मुझे उससे बात करनी है। तो उनके बाद जो उनका टेक्नीशियन की मतलब उसके बाद भी डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं वहाँ पर, दे जस्ट डोंट टॉक टू यू, दे जस्ट रीड योर रिपोर्ट, मेक योर रिपोर्ट एंड सेंड इट टू योर डॉक्टर। बट देयर आर डॉक्टर्स, मैंने उससे बहुत जिद की, तो उसने बोला कि ठीक है मैं बात करती हूँ मेरे डॉक्टर से, अगर मिलने के लिए जा रहे हैं। उसने उसको क्या बोला मुझे नहीं पता, बस ने मेरे को उस डॉक्टर ने बोला कि वो बोली कि टेक्नीशियन आप बहुत ज़्यादा एडमेंट हो कि आपको मिलना ही नहीं है और बहुत डरे हुए हो, तो आपके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है कि आपकी कुछ नहीं है। वो जस्ट द टिश्यूज विच समटाइम्स यंग पीपल हैव वेरी लाइक डेंस टिश्यूज, तो उसकी वजह से स्कैनिंग ठीक नहीं आ रहा है। सो गुरु जी ने इस साल बहुत बचाया है मुझे। और उसके बाद से मेरे बीपी का थोड़ा इशू चल रहा है, लेकिन गुरु जी का मैसेज हर रोज आ रहा है कि तेरे को मैंने बहुत बड़ी बीमारी से बचा लिया। क्या भाई गुरु जी ने बोला है कि क्या कहते हैं बार बार कि तुझे मैं कोई बड़ी बीमारी से बचा रहा हूँ, बहुत बड़ी बीमारी से बचा लिया है।
तो शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरु जी, मुझे नहीं पता आप किस चीज़ से मुझे निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, पर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ अस। थैंक यू सो मच गुरु जी। आप सुनाओ, मैं मैं यहीं से सुनाती हूँ अपना सत्संग। पता है क्या हुआ? नहीं, लेकिन ये मैं पर ये मेरे हैं, ठीक है? ये सेवा मेरी है, नहीं मेरी ये सेवा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फ्रॉम लास्ट 4 सत्संग, 3 सत्संग से मैं जैसे अपना सेवा ले रही हूँ एंड मेरे को बर्तन सेवा मिल रही है। आज मैंने लेनी थी सेवा बर्तन सेवा, और परसों मैं सत्संग सुन रही थी रात को, तो गुरु जी एक सेवादार को कह रहे तू जाके बाहर बर्तन कर, मतलब बार बार वो कह रहे गुरु जी मैं आ रहा हूँ आपके दरबार, लेकिन आप मेरे को क्यों भेज रहे हो बार बार? वो कह रहे मैं बर्तन सेवा मिल रही है संगत की, मेरे को बड़ी सेवा करनी है, मैं बैठी हूँ, लेकिन आज तो मैंने ली भी सेवा, पता नहीं क्या शायद गुरु जी ने बस कर दिया सेवा, तो इला कर रही थी, मैं कहा चलो उठ के देखती हूँ। आई थिंक एक कुकर रह गया था और एक सर्विंग वाला, तब ये बाहर से इतने सारे बर्तन और लेके आ गए। मैं क्या गुरु जी कह रहे हैं लग फिर सेवा में, और मैंने कहा मैं पहले सुनाया हूँ, शायद गुरु जी कह रहे हैं अभी बर्तन मांझ तू अभी। तो इसमें गुरु जी कुछ कह रहे हैं कि शायद अभी तेरे को ये सेवा है तो कंटिन्यू करती है अपना। एंड फ्रॉम दिस माय 4th सत्संग जहाँ पे मुझे सेवा मिली है बर्तन की, गुरु जी सिखाए होंगे। छोटी सी बात है, वाकई गुरु जी की जो इच्छा होती है ना वही होती है। आज पता नहीं क्यों मेरी इच्छा हो रही थी, मैंने कहा जब हम पाम ड्राइव में होते थे गुड़गांव, तो जिसके घर सत्संग होता ना, चाहे कहीं से भी लंगर प्रसाद आए, तो वो 2 पराठे जरूर गुरु जी के लिए देसी घी के बना के रखते थे। आज मैंने अपनी बहू को कहा, मैंने कहा ऐसे है कि मुझे आटा गूंद दे, आज मैं 2 पराठे बना के गुरु जी के लिए रखूँगी। फिर कहीं ना कहीं मन में अंदर से चल रहा है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, कभी नई चीज़ तो नहीं शुरू कर रही। आटा रखवा लिया, उसके बाद मैंने हलवा प्रसाद बनाया, और सच में मेरे दिमाग से निकल गया कि वो पराठे बनाने हैं। अच्छा, जब लंगर प्रसाद शुरू हुआ तो मेरे को दिमाग में आया, मैंने कहा मैंने तो आज सोचा था गुरु जी को पराठे खिलाने हैं। मैं कहा नहीं, गुरु जी की इसका मतलब इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा के बिना तो आप पत्ता नहीं डालते। मतलब जितना मर्जी सोच लो, ये करोगे वो करोगे, नहीं होता जब तक गुरु जी नहीं चाहते, कुछ नहीं होता। और पहले इतना बर्तन पे हाथ आ गया, कितने बर्तन आ गए? अच्छा, आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया, बहुत अच्छी संगत से मिलवाया, और मेरा ये दूसरा सत्संग है, मैंने 2 सत्संग अटेंड किए हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगा है। मैं अपने बच्चों के पास आई हूँ और मेरे को ये सत्संग बहुत ही अच्छा लगा है और मेरे दिल को बहुत खुशी हुई है। सदा जी अपनी हेल्थ का ही सुना रहे हैं और मैं भी अपनी हेल्थ का ही थोड़ा सा सुना देती हूँ। मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है। मैं अभी बात ही कर रही थी किसी से कि इतना मतलब स्पेसिफिक है मेरे मिल्क के रिक्वायरमेंट्स कि मैं एक ही शॉप से कॉस्को का ही A2 मिल्क ही पी सकती हूँ, वो भी बॉइल्ड। तो 1-2 बार इन्होंने ऐसे कहीं और शॉप का ले लिया, क्रोगर का ले लिया। सो मेरे 2-3 दिन फिर स्टमक एक ही रहता है। सो अभी 2 दिन से ऐसे ही बहुत दर्द चल रहा था। तो कल से लेके अब तक मैंने कल रात को थोड़े से चावल खाए, आधी कटोरी, और आज सुबह लंच में वही। सो अब ये हालत हो जाती है कि रात तक इफ़ यू नॉट ईटन, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं खाया। सुबह 11:30 के बाद मैंने कुछ नहीं खाया। और अब मैं जब यहाँ आई तो मेरा शुगर ड्रॉप हो जाता है, शुगर लेवल लो जाती है, और ये 3 बार पहले हो चुका है। सो अब मुझे लग रहा था कि लास्ट 3 बार मैं गिर गई थी, तो उसमें से एक बार लग गई थी मुझे, तो मेरे को लगा मैं गिरूँ पड़ूँ नहीं यहाँ पे, बस गुरुजी चलाते रहे, धक्के से चलाते रहे। और सत्संग शुरू होने वाला था तो मैंने सोचा था, मम्मी ने 4:30 बजे चाय बनाई तो उन्होंने पूछा लोगी, मैंने कहा नहीं, मैं मिल्क तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी और मैं ना कुछ खाऊंगी। सो
सो अब मैंने 11:30 का खाया हुआ, यहाँ 6:45 हो गए। तब आंटी को पता नहीं क्या हुआ, शी सेड मैं देखो थोड़ा सा जूस दे दूँ। मैं सच बोलूँ तो मेरी जान में जान रही। मैंने कहा ये चाहिए, शुगर चाहिए, इससे थोड़ी मेरी आँख खुलेगी। जैसे एक अजीब सा सर में दर्द हो जाता है किसी का शुगर फ्लक्चुएट होता हो तो यू कैन रिलेट। सो मैंने कहा मेरे को हाँ दे दो। मैंने हिम्मत करके ले लिया। और इतने लोग थे, 4-5 लोग थे रूम में उस टाइम। आई डोंट नो व्हाई शी ओनली आस्क्ड मी। मतलब परी मुझसे छोटी बैठी थी, उससे बाद में पूछा है और मुझसे पहले, तो मैंने फटाफट ले लिया। अब चाय आई तो आप मानोगे वो इतना सा कप था, पर एकदम वो अलग सा कप था। जब आप सेवा करें, मैंने कहा पता नहीं गुरुजी ने, मैंने आसपास देखा सबके बड़े वाले वो थर्माकोल वाले कप, मैंने कहा मेरा ये छोटा कप और नाक तक पूरा फुल भरा हुआ। तो मैंने उठाया तो मेरा हाथ जल गया, वो इतना थिन मटेरियल का था। मैंने कहा ये नहीं समझ आया, जला दिया। और इतना सारा है, मैं पीऊँगी कैसे, पहले ही लैक्टोज इंटॉलरेंस है। मैंने कहा चलो मैं भी रख देती हूँ, फिर देखती हूँ। अब मानोगे वो इतना नाक तक भरा हुआ था, रखते वक्त मैं डरते डरते रख रही थी कि खिड़की के पीछे गिर ना जाए। फिर मैंने समोसा वगैरह खा के थोड़ा आई फेल्ट बेटर। मैंने कहा चलो अब ठंडी हो गई, मैं पीती हूँ। अब मानोगे वो हाफ हो गया टी। मैंने 2 बार ग्लास ही वैसे करके देखा, मैंने कहा ये हाफ कैसे हो गया कप, पड़े पड़े आई डोंट नो, बिल्कुल हाफ हो गया। आई डोंट नो कैसे हुआ, बट आई एम ग्लैड कि मुझे गुरुजी ने ठीक कर दिया और कम मिल्क पीना पड़ा। बट रियली आई रियली मेजर इट, क्योंकि मेरा हाथ जला था उस पॉइंट पे। कितना भरा हुआ था वो कप, ये कप आपको ही जा रहा है। और सबके में देखे, मैंने कहा सबको थर्माकोल वाले हैं तो उसमें डिफरेंट है। बट जय गुरुजी। जबकि सारे एक ही जगह से कप आए। नहीं, इनको स्पेशली छोटा गया, इनको लेगा एक और पर्सन को गया। अब वो कप आधा हो गया, उसके बाद इवेपोरेट कितना हो जाएगा। ये एंजल को बड़ा कप गया है। आंटी सत्संग शेयर करो। जय गुरु जी। मैं ना जब घर से चली सोनी से, तो बड़ी बादल के रास्ते में गुरु जी मेरे को बादलों के बीच में नजर आए। व्हाइट ड्रेस पहनी हुई और ब्लैक सॉक्स। मेरे को हमेशा कहते थे जब भी सफेद आती है ब्लैक सॉक्स डाल के जाएगा। मैंने सोचा आज गुरु जी क्यों कह रहे हैं ब्लैक सॉक्स। और मैं ना एक बारी सत्संग पे गुरु जी के साथ आई और इतनी बारिश थी, उनके साथ आई बारिश थी, मैं घर तक बिल्कुल भीग गई और मेरे कपड़े गीले हो गए और मेरे जूते भी गीले हो गए। तो अभी घर के पास ही पहुंची तो मैंने आज गुरु जी से कहा है जी मैं कपड़े तो लाई भी हूँ, मेरे कपड़े भीग जाएंगे, मैं तो बड़ा स्लो चलती हूँ तो बिल्कुल गीली हो जाऊँगी। तो मैं गुरु जी का पाठ किया। गुरु कहने चिंता आगे तेरे गेट के छतरी लेके खड़ा होएगा, छाता लेके खड़ा होगा। और देखो गुरु जी की मेहर है और आगे वो छाता लेके खड़ा हुआ है और इतनी बड़ी छाता कि मेरे कपड़े पे एक भी बूंद नहीं गिरी बारिश की।